In my previous video, I discussed how to find out the basic feasible solution by Bham method. And this is the problem for which we have to determine the optimum solution. Optimum means best solution. As it is a transportation problem, that's why the solution for which the transportation cost will be minimum. So in my previous video, I have already find out the basic solution, basic feasible solution. Which are the basic feasible solution? Actually, it was 3 by 5 problem and dummy was added to make it is a balanced problem that I have discussed in my previous problem. In the basic solution, these are the basic solution. I have already shown in my previous video. These are the basic allocations and basic solutions. Okay, and you can check it. And this is the availability, that is capacity of the factories. I am not repeating in detail, just mentioning it. This is the capacity of the first factory. The capacity for second factory is 12. This is actually quintal. And for third factory, the capacity is 16. And the requirements for the warehouses, first warehouse requirement is 4 quintal, second warehouse require 4 quintal in this way. And this is the dummy actually. Why dummy is used, that I have already discussed in my previous video. So at present, what I will do, I am going to find out the optimum solution with the help of MODI technique. MODI means modified distribution method. With the help of MODI, we have to optimize it. Actually, this is not the optimum solution. This is the basic feasible solution, means starting solution. Okay. So how we proceed for MODI, that I am going to discuss. Okay. The first step to apply the MODI is the first step. When you will start the MODI, so first you will check that the total number of basic allocations must be m plus n minus 1 होना चाहिए, otherwise you can't proceed. ठीक है, तो बेसिक एलोकेशन जो है m plus n minus 1 होना चाहिए. m क्या है? m is the number of rows is equal to number of rows, और n क्या है? n is the number of columns. तो यहाँ पर कितना रोज है? The number of rows is 3. 1 2 3. That's why m in this case is 3. n कितना है? Number of columns 1 2 3 4 5 6. तो कितना allocation होना चाहिए? That's why that must be 6 plus 3 minus 1. That is equal to 8. तो total allocations जो है 8 होना चाहिए. The basic allocations must be m plus n minus 1, in this case 8. अगर 8 से नीचे होता है, then you have to do something, then it will be called as the degenerate problem. That means degeneracy exists. उसमें how we solve that I will discuss. और पहले देख लेते हैं 8 है कितनी. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये satisfy कर रहा है. तो in this problem the number of allocations जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है, 8 है. अगर सपोज करो कि 8 नहीं होता, 1 कम होता, ये नहीं रहता, 7 हो जाता, देन यू कैनॉट अप्लाई MODI डायरेक्टली. उसमें कुछ करना पड़ता है, वो 8 पर लाना पड़ता है, एंड दैट विल बी ए केस ऑफ डिजेनरेसी. वो जब आएंगे देन आई विल डिस्कस ए सेपरेट प्रॉब्लम, विल डिस्कस फॉर डिजेनरेसी, तो वहाँ पर देखा जाएगा. तो इन दिस केस इट इज सेटिस्फाइड. स्पेस कम है तो हम लोग इसलिए इसको इरेज कर देते हैं. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जब MODI को अप्लाई फर्स्ट तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालना पड़ता है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. तो वो निकालने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कॉलम मिनिमा, रो मिनिमा, मैट्रिक्स मिनिमा, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इतने सारे मेथड से यू कैन फाइंड आउट द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एक आधार बन जाता है. तो यू कैन प्रोसीड फ्रॉम दैट स्टेप स्लोली टू द ऑप्टिमम वन. कॉस्ट जो है स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन होता है फॉर ऑप्टिमाइजेशन. तो ये बेसिक सॉल्यूशन है. तो आई सजेस्ट कि इट इज़ बेटर टू फाइंड आउट द बेसिक सॉल्यूशन बाय भैम मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. वो मैंने इस प्रॉब्लम का किया था, यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो. ओके, तो अब मैं टुडे जो है ये MODI अप्लाई करके इसको ऑप्टिमाइज करना है. तो एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे निकलता है? 2 स्टेप में. फर्स्ट स्टेप में जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकलता है, सेकेंड स्टेप में ऑप्टिमाइजेशन. तो यहाँ पर जो है हम लोग MODI अप्लाई करेंगे. इन आवर सिलेबस वी हैव MODI.
तो स्पेस कम है इसलिए मैं दिखा दिया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। बॉडी का फर्स्ट कंडीशन है द बेसिक एलोकेशंस मस्ट बी m प्लस n माइनस 1। m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो होता है इन दिस केस रो 3 है, अरे मैं रो लिख दिया, एक्चुअली m 3 है, ठीक कर देते हैं। एक बात बराबर है, देयर इज नो इश्यूज। m इज द 3 प्लस 6, n इज द कॉलम नंबर 6 माइनस 1, तो 8 हो रहा है। तो ये 8 एलोकेशन होगा तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं होता है तो देन इट विल बी केस ऑफ डिजेनरेसी केस, और उसमें कुछ करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, तो हमने देख लिया, ये सेटिस्फाई हो रहा है, आगे बढ़ सकता है। तो इसको मैं मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दिया। और क्या करना है ना, तो ये तो मेरा रिक्वायरमेंट्स है और ये जो है अवेलेबिलिटी है, तो इसका अभी जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं मिटा देता हूँ। चेक करने के लिए देखो, चेक, ये 4 का रिक्वायरमेंट है, 4 हो रहा है एलोकेशन, ये 4, ये 4 प्लस 2 6, 8 दिखाने के लिए आई हैव नोटेड इट, 4 प्लस 4 8 एंड 4 इधर रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी का भी यू कैन चेक इट, 4 प्लस 4 8 एंड इधर 8 प्लस 4 12, और ये 4 to 6 16, सॉरी 4 प्लस 2 6, कुछ मिस्टेक्स से चेक कर लेते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था चेक कर लेना बेटर है। 4 4 तो 6 4 10, 16 लिख रहा है, लेकिन जस्ट अ मिनट चेक कर देता, देन विल प्रॉफिट। 16 28 8 36, 16 8 8 36 हो जाएगा, 4 4 8 6 14 22 6 34, ये सब भी रॉन्ग लिखा गया, ये इसको चेक कर लेते हैं। ये 14 हुआ, नॉट 16, दैट इज 14, यू कैन चेक इट। देखो इधर का टोटल 34 हो रहा है एंड इस तरफ भी 34, और चलिए मिस्टेक था। अब देखो ये 14, 4 तो 6 4 10 4 14 14, अगर गलत लिखने से गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक एलोकेशन था। नाउ मैं बॉडी का दिखा रहे हैं कैसे करें, तो किस तरह से करोगे, फर्स्ट मैं दिखा देते हैं हाउ यू विल डू, और उसके बाद दिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप टू में यू डिवाइड द कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट है, ये कॉस्ट बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट, जो तो बेसिक सेल्स है, बेसिक एलोकेशन जहाँ पर है इट इज कॉल्ड बेसिक सेल, और इसका कॉस्ट जो है ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये 2 कंपोनेंट में बांट देना है। 2 कंपोनेंट का मतलब क्या है, डुअल कंपोनेंट्स यू आई एंड वी जे, डुअल कंपोनेंट्स में बांट दे। बेसिक सेल का जो कॉस्ट है ये कॉस्ट नहीं, ये नहीं, इसी का जो बेसिक सेल है, ये बेसिक सेल या बेसिक एलोकेशन है, इस कॉस्ट को मैं 2 कंपोनेंट में बांट दूंगा। मैं पहले धीरे धीरे दिखाते हैं, एक बार रिपीट भी कर देंगे, तब मैं दिखाएंगा अलग से क्यों ऐसा होता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत समय नहीं मिलेगा, इसलिए क्यों होता है ये दिखाने के लिए टाइम चाहिए, तो अगर टाइम रहेगा तो देन यू कैन शो इट, एक बार देखोगे बाकी जरूरत नहीं। तो पहले मैं करके दिखाते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं पहले, बाद में धीरे धीरे दिखाएंगे। इसमें ऐसे किया जाता है, यू आई प्लस वी जे का मतलब दिस इज यू आई और ये वी जे, इसका मतलब है कि यहाँ का जो भी कॉस्ट मैं बांटेंगे तो U1 U2 U3 U4 U5 U6 और VJ मतलब कॉलम, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, V1 V2 एंड V3, V2 2 कंपोनेंट बांट, कैसे बांटेंगे, तो ज़्यादा एलोकेशन जहाँ है, ये पहले हम प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहे हैं, और क्यों ऐसा होता है वो मैं अलग से दिखाऊंगा। तो 2 कंपोनेंट में कौन कॉस्ट को बांटना है, ये बेसिक से, इसको ये थोड़ा हम स्लोली समझा रहे हैं, अदरवाइज विल बी इन ट्रबल। तो जहाँ ज़्यादा एलोकेशन है, देखो इस लाइन में क्या एलोकेशन है, 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इधर कितना है, 2 है, ये 1 ही है, यहाँ 2 है। जहाँ ज़्यादा एलोकेशन है वहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग तुम 0 कर दो। सर ऐसा क्यों करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, पहले तो करो, जो प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है ना, तो प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं, बाद में मैं दिखा दूंगा क्यों करते हैं ऐसा। और विद द हेल्प ऑफ दिस ये कॉस्ट को 2 में बांट देना है। 2 का मतलब कैसा बांट देना है, यू आई प्लस वी जे, इस तरह से यू आई, ये यू आई इस तरह से हो गया, और वी
जे कॉलम, दोनों का जोड़ उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो 0 का साथ 0 जुड़ेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसलिए मैंने 0 लिया, तो क्विक हो जाएगा। 0 का साथ 3 जोड़ेंगे, देखो ये 3 हो जाएगा, 3। इसका मतलब U5 का वैल्यू 3 होगा। क्यों ऐसा, वो बाद में बताएंगे। ये भी कितना हो जाएगा, 0 है और ये 4, तो दैट मीन्स ये 4 आ जाएगा। और ये हाउ मच, 0 और 6 है, तो ये 6 हुआ। ठीक है, तो अभी भी देखो ये खाली है, बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये सबको निकालना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल्स, तो इसको निकालना पड़ेगा। वो क्या रहेगा, UI प्लस VJ करके ये कॉस्ट आ जाता है CIJ। तो देखो यहाँ पर कैसा रहेगा, 0 है तो 0 है, 3 मिल गया 0, तो ये भी 4 मिला हुआ है। तो इसको निकालने के लिए तो हमको चाहिए कोई दूसरा वैल्यू लेंगे तो निकल जाएगा, ये 6 है। तो चेक करते हैं कैसे निकलेगा। तो ये 4 है, 4 इज दिस 2, तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना होता है, -2। तो इस तरह -2 लिख दिया। सर ऐसा क्यों लिख दिया, देखो ये UI प्लस VJ, तो 4 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है ना। तो ठीक है, तो अभी भी ये खाली है, देखो ये खाली है, अभी भी ये खाली है, तो सब निकल जाएगा धीरे धीरे। तो ये 2 है और ये -2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस 2, तो 2 और माइनस का -2 का मतलब 4 है। तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, तो 4 दिस प्लस दिस दोनों करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो आ रहा है ना, 4 माइनस 2 आंसर 2 आ रहा है, 2 इस तरह से डिवाइड कर देना। अभी बाकी कितना है, ये बाकी रहेगा, ये बाकी है, ये बाकी है, सब निकल जाएगा। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, ये देखो यहाँ से 6 पर चेक करना पड़ता है, सब हमको भी चेक करना पड़ता है। 2 4 ये तक हो, ये 1 है विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल्स। ये बेसिक सेल है, यह 1 है, तो क्या करो, दिस माइनस दिस करने से जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, तो -2 आ जाएगा, -2 मैंने बोला ये दोनों का UI प्लस VJ ये होना चाहिए। CIJ मीन्स ये कॉस्ट, ये CI इज द रो, J इज द कॉलम। तो ये जो है दोनों का जो ये हो जाएगा, इस तरह से डिवाइड करना है दोनों कंपोनेंट में, सो दैट कि ये आ जाए। ताकि एक को मालूम है तो दूसरे को क्या करेंगे, वो माइनस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो 3 प्लस -2, 3 प्लस ये -2, तो हो रहा है ना 1, यही 1 हो गया। तो यहाँ का सारा फुल हो गया, ठीक है। और ये छूट रहा है अभी, तो ये भी निकल जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक सेल, याद रखना है, क्योंकि इसको नहीं, ये नॉन बेसिक सेल, ये नॉन बेसिक सेल है। तो बेसिक सेल का कॉस्ट को 2 कंपोनेंट में बांटना है, UN VJ। थोड़ा शुरू में कठिन लग सकता है, मैं लुक लाइक्स कॉम्प्लिकेटेड, पर धीरे धीरे वो आसान हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, 1-2 प्रॉब्लम कर लेने के बाद इट विल बी इजी। तो 2 माइनस दिस, तब ये यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर तो दोनों का जोड़ यहाँ पर आना जाना चाहिए। तो इसलिए क्या करना है, दिस माइनस दिस, तो क्या करना, माइनस का प्लस हो जाता है, तो 2 माइनस ऑफ -2, तो 2 प्लस हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4। तो क्या हो जाएगा, देखो चेक करो, 2 के साथ ये दोनों जोड़ है, करने से ये आ रहा है। तो सारा देखो तुम्हारा UNV का सब निकाल इस तरह से। पहले एक बार मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तब मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा किए मैंने और किस तरह से किए, यहाँ पर मैंने क्यों 0 पुट कर दी, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, दैट विल डिस्कस। ठीक है, तो पहले तो इतना तक इस स्टेप में कर दिए। तो इस स्टेप में क्या किया, तो बेसिक सेल का जो भी कॉस्ट है वो 2 कंपोनेंट में बांट देना है। व्हिच आर द कंपोनेंट्स, UI एंड VJ, इसको डुअल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इस कॉस्ट को सर क्यों, इसका डिटेल बैकग्राउंड में मैं नहीं जा रहा हूँ, दैट इज अ मैथमेटिकल पार्ट, बट वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट, दैट्स व्हाई हाउ विल प्रोसीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो U1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, UT का वैल्यू 4, इस तरह से 2 वेरिएबल में बांट दिया। अब देखो एक बार चेक करके यू कैन सी कि ये जो है UI प्लस VJ ये हो रहा है कि नहीं, यहाँ 0 और 4 ये दोनों का जो ये होना चाहिए। इसी तरह से देखो यहाँ ये 4 और इसी का रो एंड कॉलम जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा। इसी तरह से सबका मैंने डुअल कंपोनेंट बांट दिया, CIJ का UI प्लस VJ। चाहोगे तो आई विल रिपीट इट अगेन, जो कैसे किया है मैं फटफट कर दूंगा, एक बार तो हो गया ना, तो दोबारा भी फेर कर देंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसका बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप 3 में, मैं स्टेप्स को लिखा देगा बाद में, पहले तो समझ लें। तो स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में 2 में तो मैंने इस तरह से डुअल वेरिएबल में बांट दिया। उसका बाद क्या करना है, ये नॉन बेसिक सेल जो है
ये तो बेसिक सेल है जहाँ पर बेसिक एलोकेशन है, जहाँ नहीं है ये नॉन बेसिक सेल, ये नॉन बेसिक सेल, ये नॉन बेसिक सेल, ये नॉन बेसिक सेल। ये सारा नॉन बेसिक सेल में क्या करना है, तो यू आई प्लस भी जे करके रखना है। नॉन बेसिक सपोज करके मैं सर्कल बना देता हूँ, इसी के अंदर में यू आई प्लस भी जे ये लिख देना है। ये सारे नॉन बेसिक सेल में सुविधा का लिए कोई भी प्रोफेशनल बुक्स में देखोगे इस तरह से बना हुआ है, तो ये आसान हो जाएगा। ये जो सेल जो है ये नॉन बेसिक सेल, ये यहाँ नहीं, ये नॉन बेसिक सेल, यहाँ सेल, ये सब में मैं यू आई प्लस भीजे करके नोट करके रखेंगे। ये यू आई प्लस भीजे ये नॉन बेसिक सेल है, इसीलिए ये नॉन बेसिक सेल है, नॉन बेसिक सेल, ये नॉन बेसिक सेल, ये भी नॉन बेसिक सेल। ये क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है धीरे धीरे देखने में, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार पता चल जाएगा ना, देन इट विल बी इजी। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, यू आई प्लस भी जे, यू आई और भी जे क्या है, ये भी वन, ये प्लस, तो जीरो प्लस -2, तो ये -2 आ जाएगा, -2। मैं धीरे धीरे दिखाइए, समझ में तो दूसरा में आ जाएगा। रो एंड कॉलम ये जो दोनों कंपोनेंट में निकाल के रखा है, इसका जोड़ यहाँ पर लिखा जाएगा, ये यू आई प्लस भी जे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस -2, तो ये भी -2 हो रहा है, ये भी -2 हो रहा है। यहाँ नहीं करना है, तो बेसिक सेल है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ पर करना है। तो 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर करना है, पहले वे सर्कल डाल के रखा है, 4 और प्लस 0 तो क्या है, 4। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखना है, 6 प्लस -2, 6 ये यू आई U1 और ये भी जे -2 रो एंड कॉलम का, तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, और कौन सा सर्कल छोटा है, ये भी छोटा है, तो 6 और रो पर चले जाओ -2, तो ये +4 आ जाता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और ये -2, तो ये 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और -2, ये +1। इस तरह से सारा नॉन बेसिक सेल्स में यू आई प्लस भीजे करके रख देना है। एक सेल अभी भी छोटा है, ये नॉन बेसिक सेल है, तो इसमें भी करना है, ये 4 और रो पे चले जाओ -2, दोनों जोड़ते हैं तो +2 आ जाएगा। तो ये स्टेप, दिस स्टेप इज ओवर। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, यू आई प्लस भीजे करके ये सर्कल में डाल दिया। नाउ स्टेप 4 डोंट वरी, हमने सारा स्टेप्स को लिखा देगा ऐसा, और उसी स्टेप्स में करना है। तो स्टेप 4 में क्या करना है, ये फॉर्म में सी आई जे मैंने यहाँ देखा था, एक ट्रायंगल का अंदर में, इस सिंबल का अंदर में सी आई जे माइनस यू आई प्लस भी जे, इस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट करके इसको डाल देना है सारा नॉन बेसिक सेल में। सारा नॉन बेसिक सेल ये मैंने जो अभी किया है यू आई प्लस भी जे, और उसी का कॉस्ट का साथ ये माइनस कर देंगे सारा नॉन बेसिक सेल में। पहले ये ट्रायंगल एक बना लेते हैं सिंबल, इसका अंदर में डाल देंगे ये ट्रायंगल। दूसरा कलर होता तो बढ़िया रहता, कि मेरा दूसरा कलर का मार्कर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए मैं इसी से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल इसी में रखेंगे नॉन बेसिक सेल का। देखो बेसिक सेल नहीं, नॉन बेसिक सेल का, तो इसी से पता चलता है कि ऑप्टिमम हुआ कि नहीं, वो मैं बताऊँगा कब बोलेंगे ऑप्टिमम हो रहा है। तो नॉन बेसिक सेल ये सारे डाला, यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ, तो क्या करना है, सी आई जे कौन सा है, सी आई जे इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट सी आई जे, ये C1 C6 यू कैन से सी आई जे, दिस माइनस दिस, ये माइनस दिस मीन्स +2, -+2 हो जाएगा ना। सी आई जे दिस माइनस दिस तो +5 क्या आ रहा है, दिस माइनस दिस ये 0 आ रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 नॉन बेसिक सेल है। यहाँ पर तो कैलकुलेट अभी तक किया, ये छोटा है, 4 और -2 +2 है, ये +2 हो जाएगा। देखो ये 4 ई कॉस्ट +-2 यू आई प्लस भी जे जो पहले वाला स्टेप पे छूट गया, तो 4 माइनस दिस इज 2, ये भी प्लस हो रहा है। अच्छा, ये 8 बिट ट्रायंगल बनाना है, 4 - 4 इज 0, ये क्या 5 - 4 दिस +1। ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल छूटा है, दिस सी आई जे माइनस यू आई प्लस भी जे, दिस माइनस दिस +1, 7 - 4 प्लस ये 3, और 0 - 2 मीन्स +2। तो सारा ट्रायंगल देखो ये आ गया। तो ये सारे ट्रायंगल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इफ ऑल दिस नेट इवैल्यूएटेड वैल्यू सी आई जे माइनस यू आई प्लस भी जे मीन्स ट्रायंगल का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स यू हैव रीच
टू द ऑप्टिमम। उनका आगे और कुछ करना नहीं है, ये डेफिनेट ऑप्टिमम हो गया। दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट एलोकेशन। इससे तो कोई भी चेंज करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एलोकेशन। तो मॉडी का थ्रू इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टीसी, तो क्या हो जाएगा, जो मैं पहले भैम का थ्रू निकाले थे वही रह गया, इसमें कोई चेंजेस करना नहीं पड़ा। लेकिन आगे जाके देखेंगे जो कभी तो ये जो है थोड़ा कॉस्ट आ गया, उसका मतलब बेस्ट एलोकेशन F1 से M2 मेरा उसमें 4 यूनिट ले जाना है, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस, तो और बेसिक एलोकेशन नहीं है, जब बेसिक एलोकेशन है वही तुम्हारा सॉल्यूशन जा रहा है। यहाँ पर है बेसिक एलोकेशन, तो इस सोर्स से यहाँ पर 8 यूनिट ले जाना है, लेकिन यहाँ से यहाँ कोई यूनिट ले जाना नहीं है, यहाँ से कोई ले जाना नहीं है। 8 प्लस 8 इंटू, तो कितना आ जाएगा 2, 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 और नेक्स्ट 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 प्लस ये बेसिक एलोकेशन है, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0। तो टोटल कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई इट, तो देखोगे ये वही 80 आ रहा है जो पहले भी हमने किया था भैम का थ्रू। ये कोई चेंजेस नहीं है, मतलब वही ऑप्टिमम। सर कॉस्ट तो एक ही आ रहा है, तो फिर हम लोग इतना क्यों किए, क्योंकि वो तो हम लोग डेफिनेट नहीं थे ना। डेफिनेट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई मॉडी, इसलिए मैंने किया है। तो एक बार मैं थोड़ा रिकैप कर देते हैं, तब उसके बाद फिर एक बार दिखाएंगे कि जो जो जीरो क्यों पुट किए थे, इस तरह से ये क्या किए थे। तो इसको जो ऑप्टिमम का 3 स्टेप में करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो स्टेप 4 स्टेप में करते हैं। स्टेप 1 में जो है फर्स्ट m प्लस n माइनस 1, ये जो होता है उतना नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए, ओनली देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। अगर नहीं होता है तो कुछ करना पड़ता है, उसको डिजेनरेसी केस बोलते हैं। वो क्या करेंगे जब उस तरह का प्रॉब्लम आएगा, देन हम डिस्कस। तो फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू चेक m प्लस n माइनस 1 है कि नहीं। m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और -1। यहाँ रोज 3 है, कॉलम 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है। तो 6 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो रहा है, 8। तो 8 एलोकेशन है कि नहीं, 1 2, ये बेसिक एलोकेशन 3 4 5 6 7 8 है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैन प्रोसीड फर्दर। अगर ये नहीं रहता बिगिनिंग रिपीटिंग, तो डिजेनरेसी केस होता, उसमें कुछ दूसरा तरह से करना पड़ता है, वो आगे हम दिखाएंगे। जब ये हो जाता है, नेक्स्ट सारा बेसिक सेल का जो कॉस्ट है उसको यू भी वेरिएबल में डिवाइड कर देना है। ये वेरिएबल मतलब डुअल वेरिएबल बोलते हैं, 2 वेरिएबल। यू आई का मतलब देखो, यू आई का U1 U2 U3 U4, इस तरह से जो बेसिक सेल का कॉस्ट है, बेसिक सेल को ना ये 6 को डिवाइड किया रो, इस तरह से U1 और V, ये 2 कंपोनेंट में बांट दिया, इधर V1 V2 V3। तो ये सेकेंड स्टेप होगा। ये करने के लिए तो बहुत क्लामी हो गया समझाने के लिए, तो मैंने बताया था, लेकिन फिर भी बताते हैं। आई विल स्टार्ट, एक बार मैं फिर करके दिखाऊंगा इसी पर। तो खास क्या करते हैं, जहाँ नंबर ऑफ एलोकेशन ज़्यादा है, जहाँ रो या कॉलम में, तो वहाँ उसका एगेंस्ट में पहले 0 कर लो, और उसका बाद में सारा एगेंस्ट में, उसका बाद में डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है। वो मैंने दिखाया था, अब मैं करके दिखाते हैं। और उसका आधार पर इनडायरेक्टली सारा UI एंड VJ का वेरिएबल को बना लेंगे। तो UI और VJ का जब वैल्यू सब निकाल जाता है with the help of basic cell cost, नॉन बेसिक का लेना नहीं है, ये बेसिक सेल का कॉस्ट, तब जाके क्या करना है, with the help of UI and VJ, जो नॉन बेसिक सेल है उसका जोड़ को सर्कल में रखा है, ये थर्ड स्टेप में होगा। सर्कल में UI प्लस VJ, ये जो UI और VJ का जो वेरिएबल का जोड़ है उसको रखते हैं। और फाइनली फोर्थ स्टेप में जो ट्रायंगल का अंदर है CIJ नॉन बेसिक सेल का, अब बेसिक सेल का कोई फंक्शन नहीं है, CIJ माइनस UI प्लस VJ, इस तरह से सारा नॉन बेसिक सेल का हम लोग करते हैं। अगर उसको चेक करते हैं सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। इस केस में सारा ग्रेटर देन 0 है, देखो सारा ट्रायंगल का जो है ग्रेटर देन 0, CIJ ट्रायंगल का CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो ये अगर नहीं होता तो हमको आगे फिर प्रोसीड करना पड़ता। वो कैसे करना पड़ता है, जब उस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम दिखाएंगे। उसका मतलब जो ये एलोकेशन है ये बेस्ट नहीं है, उसको सुधारना पड़ेगा, कॉस्ट का रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। मैंने ये अभी दिखाया नहीं है कि ये जो तुम्हारा 0 ये सब किए हैं कैसे किए हैं। एक बार थोड़ा इसी पर एक बार दिखा देते हैं, उसका बाद में मैं इसका पीछे जो सिस्टम है वो हम अलग से एक बार बताएंगे।
तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो है तुम्हारे पास तो नोट किया हुआ होगा, मैं इसलिए इसको सारा इरेज करके एक बार दिखा देते हैं तो कैसे किया। ये सारे इस प्रोसेस से मैंने एक बार करके दिखाता हूँ। UI प्लस VJ का इसको आई एम रिपीटिंग जस्ट कैसे किया ये दिखाने का लिए, और बाद में मैं वो एल्जेब्रिक प्रोसेस को अलग से दिखाएंगे। एग्जाम में कभी कभी वो बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो UI प्लस ये जो सारे हमने बेसिक सेल कौन है, बेसिक सेल को मैं एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। व्हिच आर द बेसिक सेल, दिस इज बेसिक सेल, दिस इज बेसिक सेल, दिस इज बेसिक सेल, ये बेसिक सेल, ये बेसिक सेल, ये भी बेसिक सेल, ये बेसिक सेल, ये बेसिक सेल। तो ए प्लस इन माइनस 8 तो हो गया। अब मैं UI प्लस VJ वाला चीज को एक बार दिखाते हैं। यहाँ UI दिस इज VJ, ये कैसे निकाला है, इस UI का मतलब U1 U2 U3 U4 U5 U6 जो मैं ये तो उसी को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा रिकैप करने के लिए, और कुछ नहीं। इस तरह से मैं करते हैं। और इसका जो एल्जेब्रिक मेथड है जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो कैसे वो हुआ वो अलग से मैं एक बार दिखाऊंगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में एक बार दिखा भी सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल्स ये सारे वैल्यू को, डुअल वैल्यूज को निकालना है। ये बेसिक सेल को शायद मैंने दिखा दिया। तो क्या करोगे, जहाँ ज़्यादा एलोकेशन है रो या कॉलम में, उसका अगेंस्ट में मैं 0 पुट कर देंगे। यहाँ 0 मतलब ये वेरिएबल को इक्वल टू 0 कर दिया, और दोनों का जोड़ जो है ये होना चाहिए कॉस्ट UI प्लस VJ। तो जब ये 0 है तो डेफिनेटली इसका अगेंस्ट में जो चीज़ है मैं सीधा लिख सकता हूँ। इसलिए सुविधा के लिए मैं करते हैं बेसिक सेल का, यह नहीं करेंगे। ये बेसिक सेल ही है, यहाँ 4 जगह लिख दिया, और ये भी है 6 जैसा। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि दिस प्लस दिस ये होना चाहिए। जब 0 या लिख दिए तो 0 का साथ जो भी जुड़ेंगे वो तो वही रहता है ना, इसलिए मैं सीधा 6 लिख दिया। ठीक है, ये बेसिक सेल 3 लिख दिया 0। ठीक है, ये अब इसको निकालना है, इसको नहीं निकालना है, ये निकालना है जो छोटा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस देखोगे सब निकल जाएगा। कैसे, अभी मैं एक एक कर रहा हूँ। ये 3 है ना, यहाँ 1 है, तो जब 2 मिल जाता है तो ये भी निकल जाएगा। और निकलने का बेस्ट तरीका है 1 माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा -2 हो गया। क्यों, तो दिस प्लस दिस करोगे तो याद है विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल। ये सेल का तो अभी इसका तो अननोन है, नहीं जानते हैं, लेकिन ये पता चल गया। तो 2 माइनस दिस, तो 2 माइनस माइनस ऑफ 2, तो क्या कितना हो जाएगा 4। ये 4 हो जाता है, 2 माइनस ऑफ 2 ये 4। विद द हेल्प ऑफ दिस निकल जाओ कौन सा छुटा है, ये छुटा है, ये छुटा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल्स। ये 2 है, तो इसको तो मैं अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो दूसरा का थ्रू ये निकल जाएगा। बेसिक सेल यहाँ पर कौन सा है, ये 4 है, -2 बेसिक सेल 6, तो 0 0 कौन सा है, ये छुटा है ना, छुटा है, तो ये छुटा है, तो ये निकल जाएगा ना 2 माइनस 4। ये मालूम है, ये 4 मालूम है, 2 माइनस 4 का मतलब -2, ये -2 निकल गया। तो आप कौन सा बाकी है, आप एक बार देखो ऑटोमेटिक प्रोसेस ऐसा ही निकलना है। तो 2 है और ये भी मिल गया, तो ये निकल जाएगा 2 माइनस का -2 मतलब ये प्लस। तो चेक करो, मैं यही निकाला था पहले भी, इसी तरह एक बार चेक कर सकते हो। मैं इस तरह से निकालता हूँ उसको, जो है UI प्लस 4 इस तरह से 0 माइनस टू ठीक है। और इधर 4 4 6 6 4 4 6 4 4 4 3 0। ठीक है, और आगे को मैं डिस्कस नहीं करूँ। इसके बाद में क्या किए थे, इसके बाद ये सर्कल सब बनाए थे, UI प्लस VJ सर्कल, और उसके बाद ट्राइंगल किए थे। अच्छा, अब प्रश्न उठ रहा है सर ऐसा क्यों करते हैं, सर जो 0 बना दिए ऐसा क्यों करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कैसे, एक्चुअली मेरा कंडीशन क्या था, जो बेसिक सेल्स है, बेसिक सेल्स का कॉस्ट को 2 कंपोनेंट में बांटते हैं, UI एंड VJ। तो ये बेसिक सेल्स कौन सा है, ये बेसिक सेल है, ये बेसिक सेल है। तो ये वेरिएबल मैंने पहले लिख दिया, तो मैं एक एक करके इक्वेशन बना देता हूँ। देखो, तो बेसिक सेल का ये अगर लिखते हैं इस कॉस्ट को, तो 2 कंपोनेंट U1 प्लस V3, U1 प्लस V3 इक्वल टू 6, 2 कंपोनेंट पे बांट दिया एक, तो ये हो गया। ठीक है, मैं कर देता हूँ सो दैट कि ये जो है बेसिक सेल का, ये कौन सा वेरिएबल है, U3 प्लस V3, U3 प्लस V3 ये कितना हो जाएगा 4। ये हो रहा है सपोज करो कि 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2 है इस तरह से। इसका बाद क्या है, ये U5 है, U5 प्लस V3 4, U5
प्लस V3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ये क्या है, U6 प्लस V3, U6 प्लस V3, ये कितना आ रहा है, U6 प्लस V3, ये 0 आ रहा है, 0। तो 1 2 3 4 हो गया ना, कितना इक्वेशन निकलेगा तुम्हारा 8, 4 3 7 कितना, जितना बेसिक सेल्स है 1 2 3 4 4 8 था ना, तो इसलिए 8 आ जाएगा, 8। नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं, ये V4 प्लस V2, V4 प्लस V2 इज इक्वल टू V4 प्लस V2 इज इक्वल टू 2, ये मान लो 5 है। और ये क्या है, U5, तो गलत लिख दिया है ना, 2 2 का U4, दिस इज U4 प्लस V2, U4 प्लस V2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद U5 प्लस V2, U5 प्लस V2 इज इक्वल टू 1, ये 1 हो रहा है 6, और 2 रह गया अभी, ये U2 प्लस V1, U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 2, 7। और ये जो है U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 2, ये 8 इक्वेशन मिला है। और इसको सॉल्व करके सारा वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल देना है। तो टोटल वेरिएबल्स तो हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 9 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन है 8। तो क्या यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं, कोई एक को फोर्स्ड जीरो करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन सॉल्व इट, समझ गए ना। तो इसलिए कोई एक ना कि एक को जीरो करेंगे, तो इसलिए मैंने V3 को जीरो कर रहा था। आप देखो सब लेट किसी एक को जीरो कर देना है, हमने यहाँ V3 को जीरो किया। अब देखो बाकी सबका वैल्यू सॉल्व करते तो निकाले, V3 अगर जीरो करते तो U1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1, तो U1 आ जाएगा, V3 जीरो है 6, U1 हो जाएगा 6, देखो ये 6 आ गया। अब मान लो इसमें V3 का जीरो लिया, तो U3 कितना आ जाएगा 4, U3 इज इक्वल टू 4, U3 देखो 4 है, U3 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से सॉल्व करोगे तो सारा वैल्यू निकल जाएगा। आपको दिखा है क्या? अच्छा और दिखाते हैं, U6 प्लस V3, ये देखो इस इक्वेशन में V3 कितना निकला, V3 जीरो है, तो U6 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो U6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, U6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से तो सबका वैल्यू निकाल सकते हो। U1 जैसा U4, U6 कहाँ पर है, इसका यहाँ पर देखोगे V2, V3, U3, अच्छा U4, हाँ U1 इज इक्वल टू 6, अच्छा V1 V2 V3, एक एक करके इसमें चेक करोगे, सब पर डिपेंडेंट है, थोड़ा सा ट्राई करने से निकल जाएगा। अच्छा U1 U2 निकल गया, V1 कहाँ है, V1 हमने निकाले हैं क्या, U1 V3 निकल गया, U1 निकल गया। अच्छा यहाँ से कोई एक U2 U3 इज इक्वल टू 4, इसमें से देखो, इसमें से U3 इज इक्वल टू 4, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो V1 इज इक्वल टू -1, V1 देखो ये माइनस, सॉरी क्या हो गया, U3 इज इक्वल टू 4 और V1 इज इक्वल टू 2 माइनस 4, ये -2 होगा, सॉरी लिखने में गलती कर दिया, तो V1 इज इक्वल टू -2, इस पर पुट करके चेक करोगे तो देखोगे सारा वही वैल्यू आ जाता है। तो एग्जाम में एक प्रोसेस में तुम इस तरह से डिटेल करके दिखा सकते हो, बट जो है सारा प्रोसेस में करने जाओगे तो एक प्रॉब्लम ही तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई ये प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैसे तुम डायरेक्ट कर सकते हैं जो मैंने दिखाया। अच्छा अब बोलोगे सर V3 को आप क्यों जीरो लिए, मैं V2 को जीरो लेंगे, V2 को भी जीरो लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन सारा वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द प्रोसेस इज सच दैट उससे भी रिजल्ट वही आएगा, लेकिन सुविधा के लिए मैंने इस तरह से करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो वैल्यू देखे कि कोई एक को जीरो करना है, तो जीरो जैसे तुम चेंज करोगे तो आधा वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज करने से जो टोटल है सब टोटल वो अल्टीमेटली वही आ जाता है जो रिजल्ट ऑप्टिमम का होगा। तो ये था मेरा बॉडी का एप्लीकेशन, कैसे बॉडी का थ्रू अप्लाई करके तो हम ऑप्टिमम निकालते हैं। तो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था, लेकिन हम रिपीटिंग क्या किए थे शॉर्ट में। तो फास्ट मैंने m+n-1 चेक किया उतना एलोकेशन है कि नहीं, तो अगर है तो मैं आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड में क्या करते हैं, सारा बेसिक सेल का जो कॉस्ट है उसका 2 कंपोनेंट में बांट देते हैं, UI एंड VJ में, और उसके बाद जैसे सारा निकल जाता है, और यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना है, ऐसे करते हैं जहाँ ज़्यादा एलोकेशन है
रो या कॉलम में उसका एगेंस्ट में पहले मैं जीरो कर लेते हैं उस वेरिएबल को, तो वो आसान पड़ जाता है। ऐसा नहीं भी करोगे, दूसरा को जीरो कर दोगे तो पर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें देखना पड़ता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यू आई या भी का जब वैल्यू निकल जाता है तो सर्कल में मैं यू आई प्लस वी जे का वैल्यू नॉन बेसिक सेल में रख देंगे, और नॉन बेसिक सेल में रखने का बाद क्या करेंगे, एक ट्रायंगल सिंबल में यूज़ किया, उसी का अंदर में नॉन बेसिक सेल का कॉस्ट का साथ माइनस यू आई प्लस वी जे कर देंगे, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे करके सारा ट्रायंगल में ये डिफरेंसेस निकाल लेके रख देंगे और चेक इट, इसमें चेक करना है कन्फर्मेशन टेस्ट ये ऑप्टिमम हुआ कि नहीं, जो ट्रायंगल का सारा वैल्यू जो है पॉजिटिव या जीरो हुआ कि नहीं, पॉजिटिव या जीरो होता है तो आप समझ लो कि तुम्हारा काम खत्म, ये रूल्स टू द ऑप्टिमम। लेकिन एक भी अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, तुमको आगे प्रोसीड करना है, एलोकेशन को चेंज होगा, जहाँ नेगेटिव आएगा उस पर एलोकेशन देना पड़ेगा, और वो किस तरह से करना है मैं उसका एक प्रॉब्लम अलग से दिखाऊंगा, तभी समझ में आएगा। अगर दो नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, जहाँ मोस्ट नेगेटिव है उस पर मैं एलोकेशन को लाऊंगा, तो देखोगे कॉस्ट का रिडक्शन हो जाता है होगा। तो करते करते जब जाके सारा ट्रायंगल का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब मैं रुक जाएंगे, और वही मेरा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या हुआ, तो इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पर ये वगैरह उस पर 4 यूनिट को ले जाना है, यानी एक्स का थ्रू लिखता है, तो मैंने बाद में लिखा कि एक्स का थ्रू कैसे ये एक्चुअली हो जाएगा x1 रो 1, ये x1 x2, और ये अगर वेरिएबल इस तरह से लिखते हैं सॉल्यूशन x1 ये x1 2 वेरिएबल हो गया इज इक्वल टू 4 यूनिट, 4 यहाँ से यहाँ 4 यूनिट लगे x1 3 ये 4 यूनिट, इस तरह से इस तरह आउट बेसिक लोकेशन का है यहाँ पर, ये हो जाएगा x2 और ये 4 x2 4 इस वेरिएबल को 8, ये सॉल्यूशन आ जाएगा 8 यूनिट्स। ये क्या हो जाएगा x2 5 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, उसका बाद ये आ जाएगा x3 1 इज इक्वल टू 6 सॉरी 4, ये थोड़ा सॉल्यूशन जो हो जाएगा, इसको थोड़ा जगह लेने का होता है। नेक्स्ट ये जो है ये x3 और 3 ये वेरिएबल जो है x3 और ये भी 3 इज इक्वल टू 2, और ये बेसिक एलोकेशन ये है, तो ये क्या हो जाएगा x3 5 इज इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा ये x3 डमी x3 6 जो एक्चुअली 6 कॉलम है ये 4, तो ये तुम्हारा ये सॉल्व जो वेरिएबल है, और कॉस्ट में ऑलरेडी निकाल के दिखा दिया 80 होता है, लेकिन जहाँ कुछ एलोकेशन नहीं है उसका मतलब क्या है वहाँ जीरो होगा, ताकि यहाँ से ये डेस्टिनेशन पर कोई यूनिट को नहीं लिया जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर कोई नहीं ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है यहाँ से यहाँ कोई नहीं ले जा रहा है। So in this way you can solve the transportation problem by 2 steps. Initially you have to find out, 2 steps mean 2 stages. First you have to find out the basic feasible solution, और सेकेंड स्टेज में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है बहुत सारे मेथड्स हैं, डॉक्टर्स को मैंने बताया है, लेकिन वेब इज़ द बेस्ट मेथड, और सेकेंड स्टेज में उसको ऑप्टिमाइज करते हैं बाय अप्लाइंग मॉडी मेथड। थैंक यू। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू जस्ट write to the comment box and I will definitely explain it. No problem at all. Thank you very much.